Hello, welcome students. This is the second lecture of anatomy. In the previous lecture, we have discussed about the anatomical position, about different positions of the human body. For example, prone position, supine position, lithotomy position. We have read about different planes, for example coronal plane, frontal plane, horizontal or transverse plane, oblique plane. In today's lecture we will discuss about the terms related to the movement. जो terms movement से relation में use होती हैं, आज हम उनको discuss करेंगे. Okay, so let's start. So the first position related, so the first term related to movement is flexion. Here it is written flexion. What is flexion? Flexion is the bending a joint or decreasing the angle between the two bones. ठीक है. For example, in the upper limb at the elbow joint, when we approximate both the flexor surfaces, this action is known as flexion of the elbow joint. ठीक है. For example, in the fetal position, fetal जो position होती है, ये जो position दिखा रखी है, this is fetal position in which every joint is flexed. ठीक है, इस तरह से बेबी होता है, so every joint is flexed, so the term is flexion. Okay, then another term is extension. Extension means straightening a joint or increasing the angle between the two bones. Okay, for example अगर मैं इसकी बात करूँ, that is wrist joint की, so when we approximate the flexor surfaces, this is the flexion. ठीक है, and this one is the extension when we approximate the extensor surfaces. ठीक है, so anterior surface in the upper limb is known as flexor surface, posterior surface is known as the extensor surface. ठीक है, so when the flexor surfaces approximate each other, then it is known as flexion. When the extensor surfaces approximate, then it is known as extension. There is increase in the angle between the two bones. Okay, that is extension. थोड़ा सा difference है. In the upper limb, anterior surface is the flexor surface, while in the lower limb, anterior surface is the extensor surface, and posterior surface is known as the flexor surface. Okay, so in the knee joint, when the knee joint is turned backwards, that is the flexion, and when the knee joint is again to its position, then it is known as extension at the knee joint. Okay, now we will discuss the another term, that is hyperextension. Hyperextension means excessive extension of the parts at a joint beyond anatomical position. Anatomical position में जब हैं, then we are extending our joints, और beyond anatomical position अगर हम जाते हैं, then this is hyperextension. Okay, so these are the three terms. We will discuss another terms related to movement. What is adduction? What is abduction? ये थोड़ी सी और नई terms हैं आप लोगों के लिए. What is adduction? Adduction means moving a body part towards the midline of the body. ठीक है, so in the anatomical position में जब हम खड़े हैं, when we will bring the upper limb towards the body, then it is adduction. ठीक है, and when move a body part away from, then it is known as abduction. Okay, so these are the two terms related to movements, adduction and abduction. Okay, adduction and abduction terms are used related to upper limb, somewhat in the lower limb also. ठीक है, normally जो हम खड़े रहते हैं, that is the adducted position. ठीक है, जब हम hip को बाहर की तरफ extend करेंगे away from the body, then it will known as abduction. Abduction of the lower limb, abduction of the upper limb is also there, abduction of the lower limb is also there. Adduction of the upper limb and adduction of the lower limb, both are present. Okay, now another terms related to movement are pronation and supination. What is pronation?
turning the arm or foot downward. This pronation and supination terms are used mainly in the upper limb. ठीक है, मेनली अपर लिम्ब में यूज़ होता है. What is pronation? Means this position is known as pronation. ठीक है, and when the palm face upwards, then it is known as supination. When the palm of the upper limb face downwards, then it is known as pronation. ठीक है, इसके लिए एक बोला भी जाता है kings pronate and beggars supinate. मीन्स जो भिखारी होते हैं वो सुपिनेट पोजीशन में रखते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ मांगने के लिए. ठीक है, जो भिखारी की पोजीशन होती है दैट इज़ सुपिनेट पोजीशन. जो किंग्स हैं, किंग्स मीन्स जो राजा हैं, जो दयावान हैं, जिनको देना है. ठीक है, दैट रिमेन जो उनकी पोजीशन होती है दैट इज़ प्रोनेटेड हैंड. ठीक है, तो किंग्स ऑलवेज प्रोनेट वाइल बेगर्स ऑलवेज सुपिनेट. ओके, नाउ अनदर टर्म रिलेटेड टू द मैंडिबल. ये हमारी इस बोन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ मैंडिबल. सो रिलेटेड टू द जॉ मूवमेंट्स, हम जॉ बोलें या मैंडिबल बोलें. फर्स्ट मूवमेंट रिलेटेड टू जॉ इज़ रिट्रैक्शन. मीन्स मूविंग रिट्रैक्शन मीन्स मूविंग द पार्ट बैकवर्ड. ठीक है, ये इस तरह से पीछे की तरफ मूव करना दैट इज़ रिट्रैक्शन. आगे की तरफ मूव करना मीन्स प्रोट्रैक्शन. ओके, elevation means up, closing of the mouth is known as elevation and opening of the mouth is known as depression. ठीक है, तो ये related to the jaw movements हैं. Now another movement related to upper limb, related to lower limb, related to neck. First is rotation. What is rotation? This is rotation. Okay, द राउंड मूवमेंट टर्निंग ऑन अ सिंगल एक्सिस. एक एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन. ठीक है, देन व्हाट इज़ सरकमडक्शन. सरकमडक्शन जो होता है वो आपके जैसे एक तो होता है अपना शोल्डर जॉइंट पे पूरा जो हम रोटेट करते हैं. सरकमडक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड फ्लेक्शन. ठीक है, दिस इज़ नोन एज सरकमडक्शन. जो पूरा आपने मूव किया अपने अपर लिम्ब को, अपने शोल्डर जॉइंट को, दिस मूवमेंट इज़ नोन एज सरकमडक्शन. ठीक है, देन एक्सटर्नल रोटेशन, रोटेशन ऑफ द हिप और शोल्डर अवे फ्रॉम द मिड लाइन. ठीक है, बाहर की तरफ घुमाना दैट इज़ एक्सटर्नल रोटेशन, अंदर की तरफ घुमाना दैट इज़ इंटरनल रोटेशन. ठीक है, वही टुवर्ड्स द मिड लाइन हम बोलेंगे तो इंटरनल रोटेशन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन बोलेंगे तो वो होगा एक्सटर्नल रोटेशन. ठीक है, हम अगर एल्बो जॉइंट की बात करें, एल्बो जॉइंट में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन. ठीक है, इंटरनल रोटेशन मीन्स मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन. ठीक है, तो ये एल्बो जॉइंट में इस तरीके से होता है. शोल्डर जॉइंट में हमने बताया कि अगर हम अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं तो वो है इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ मोड़ रहे हैं तो वो है एक्सटर्नल रोटेशन. ओके, नाउ lateral flexion means side bending or bending the body towards left or right, that is lateral flexion. Okay, then now movements of the foot. Related to the foot there are some terms used. For example, inversion. Inversion क्या होता है? inversion में turning the sole of the foot inward. ठीक है, when sole, अगर हम मान लें ये palm नहीं है, this is sole, तो ये नॉर्मली आपका जो फुट है वो इस पोजीशन में होता है. अब अगर व्हेन द सोल ऑफ द फुट फेसेस इनवर्ड देन इट इज़ नोन एज इन्वर्जन. व्हेन द सोल ऑफ द फुट फेसेस आउटवर्ड देन इट इज़ नोन एज ईवर्जन. ठीक है, तो इन्वर्जन, ईवर्जन. ठीक है, एंड अनदर टर्म्स आर डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन. दिस सरफेस इज़ द dorsal surface of the foot. So what is dorsiflexion? When ankle movement brings the foot towards the shaft. ठीक है, ये हमारा फुट है, अगर हम इसको इस तरह से फ्लेक्स करेंगे then it is known as dorsiflexion. ठीक है, अगर हम फुट को नीचे की तरफ मूव करेंगे then it is known as plantar flexion. ठीक है, तो plantar flexion में जो आपकी टोज़ हैं they will point downward
ठीक है, और डॉर्सी फ्लेक्शन में जो टोज हैं दे आर मूव अपवर्ड, ठीक है। तो डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ईवर्जन, ये फुट के मूवमेंट्स हैं, ओके। नाउ मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट एंड थंब के मूवमेंट्स, ठीक है। रेडियल डिविएशन एंड अल्नर डिविएशन, जैसे ये रिस्ट है, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड्स द लेटरल साइड, अगर मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ लेटरल साइड, तो दिस इज़ रेडियल डिविएशन, क्योंकि रेडियस की साइड, ये लेटरल बोन रेडियस होती है अपर लिम्ब में, तो रेडियल डिविएशन, अल्नर डिविएशन, ठीक है। एंड थंब के मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग, दिस, ये थंब के मूवमेंट्स में अगर हम बात करें व्हाट इज़ फ्लेक्शन, अगर हम थंब बोलें या हम बोलें दिस इज़ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कौन सा जॉइंट है ये, फर्स्ट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट जो होता है दैट इज़ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, व्हाट इज़ फ्लेक्शन, दिस वन इज़ द फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, मीन्स इन द प्लेन ऑफ द पाम, पाम के प्लेन में जो मूवमेंट हो रहा है थंब का दैट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द थंब। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पाम में जो मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं इस तरह से रखूं, ठीक है, तो दिस इज़ फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, दिस इज़ एडक्शन, दिस इज़ एबडक्शन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पाम दिस इज़ एडक्शन, दिस इज़ एबडक्शन, तो ये एडक्शन एबडक्शन ये होगा, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ द पाम फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पाम एडक्शन एबडक्शन होगा, और लास्ट एक और मूवमेंट होता है दैट इज़ अपोजिशन, मीन्स मूवमेंट ऑफ द थंब व्हेन इट टचेस द फिंगर्स ऑफ द हैंड, दिस मूवमेंट इज़ नोन एज अपोजिशन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे दिस इज़ अपोजिशन मूवमेंट, ठीक है। सो 5 movements are related to the first carpometacarpal joint: flexion, extension, adduction, abduction and opposition. Okay, now so these are the movements और these are the terms related to the movements at various joints. आप आगे और बहुत सारे movements पढ़ेंगे, बहुत सारे joints से related different terms यूज़ होती हैं। तो main जो terms हैं flexion, extension, हाइपर एक्सटेंशन कभी कभार यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, व्हाट इज़ सुपिनेशन, व्हाट इज़ प्रोनेशन, व्हाट इज़ इनवर्जन, व्हाट इज़ ईवर्जन, व्हाट इज़ डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट, व्हाट इज़ प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, ठीक है। व्हाट इज़ सर्कमडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, व्हाट इज़ रेडियल डिविएशन एट द रिस्ट जॉइंट, व्हाट इज़ अल्नर डिविएशन एट द रिस्ट जॉइंट, व्हाट इज़ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, व्हाट इज़ adduction, abduction, opposition at the first carpometacarpal joint. So these terms and related to the jaws, for example, what is protraction, what is retraction, what is depression, what is elevation, ठीक है। एंड दिस इज च्यूइंग मूवमेंट कहते हैं इसको, जो आप चबाते हो खाने को, दैट इज़ च्यूइंग मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच वी यूजुअली यूज़ इन एनाटमी रिलेटेड टू द मूवमेंट्स, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एक और पार्ट है दैट इज़ बॉडी कैविटीज़। हमारे अंदर बहुत सारी बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज़ नोन एज सिलोम, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्म दिखाई दे रही होगी सिलोम, ठीक है। सिलोम वर्ड यूज़ करते हैं हम वेंट्रल बॉडी कैविटी के लिए, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, अलाउज ऑर्गन मूवमेंट, लाइनिंग प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, इट इज़ सेपरेटेड बाय डायफ्राम इनटू 2 कैविटीज। जो हमारी पूरी बॉडी कैविटी है उसको हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं, जिसको डायफ्राम ने हमारी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अपर इज़ द थोरैसिक कैविटी एंड लोअर इज़ द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है। तो अब मैं थोरैसिक कैविटी की अगर बात करती हूँ तो थोरैसिक कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू, थोरैसिक कैविटी में जो मिड वाली कैविटी है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं हम उसको? मीडियास्टिनम, ठीक है। विच इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, बट अभी के लिए दैट इज़ मीडियास्टिनम। एंड जहाँ लंग सिचुएटेड है दैट आर प्लूरल कैविटीज़। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लूरल कैविटीज़, राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट प्लूरल कैविटी, ठीक है।
सो जो थोरैसिक कैविटी है इसको हमने डिवाइड कर दिया है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम में और भी स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए जिसमें सिर्फ हार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, लंग्स जहाँ प्रेजेंट है दैट आर प्लूरल कैविटी। मीडियास्टिनम में हमारे अलोंग विद द हार्ट देयर इज़ ट्रेकिया, इजोफेगस, देयर इज़ वेना केवास, देयर आर एओर्टा। ठीक है, मेजर वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड अनदर कैविटी इज़ द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में जो अपर वाली पार्ट है दैट इज़ एब्डोमेन का, दैट इज़ एब्डोमिनल कैविटी, और जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, यूट्रस, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नोन एज पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक है, पैनक्रियाज है, ड्यूडेनम है ना, देन स्प्लीन है, देन इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब अपनी एब्डोमिनल कैविटी में आता है। और पेल्विक कैविटी में पेल्विक रीजन्स, पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरी है, यूट्रस है, एंड सम पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो, फॉर एग्जांपल रेक्टम, एनल कैनाल। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी। ओके, सो जो हमने टर्म्स इस तरह से पढ़ी हैं यहाँ पे अभी आज, टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट एंड सम इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी कैविटीज। ओके, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा मेडिकल कॉलेज में आके, और आप अपनी पढ़ाई इस तरह से कंटिन्यू रखें। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है।